اور میں امریکی کانسولیٹ میں کانسولر سیکشن میں کام کرتی ہوں. ہماری فیس بک لائیو چیٹ میں آنے کا بہت بہت شکریہ. ہم پہلی بار فیس بک لائیو چیٹ کھا رہے ہیں, تو تھینک یو فار یور پیشنس. اور اس چیٹ کے ذریعے میں آپ کے سوالات کا جواب دینے کی کوشش کروں گی, اور میں اردو میں جواب دینے کی کوشش کروں گی. ہم دیکھیں گے اگر مجھے کسی چیز کی کوشش کروں گی. ہم دیکھیں گے جی اگر ایک لفظ ہے جو مجھے پتہ نہیں تو میں شاید انگریزی میں بتاتی ہوں. اوکے, سو ہیلو. میں دیکھتی ہوں کہ کچھ لوگ ابھی ہمارے ساتھ ہیں. ذیشان صاحب, شہزاد صاحب, فیصل, علی عباس صاحب, بہت سارے لوگ. تو اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو تو آپ کامنٹ سیکشن میں لکھیں, اور میں دیکھتی ہوں کہ آپ کے کون سے سوال ہیں. تو پہلا سوال جو میں نے دیکھا تھا, محسن صاحب نے پوچھا تھا کہ ہاؤ کین آئی گیٹ اے US ویزا. اور اس سوال کا جواب بہت بہت آسان ہے. آپ کو ہماری ویب سائٹ دیکھنے کی ضرورت ہوگی. تو ہمارا ویب سائٹ US Consulate کراچی. تو فیس بک پیج, آپ ابھی ہمارے فیس بک پیج پہ ہیں, لیکن ہمارے ویب سائٹ پر سب ہدایت ہیں, سب انسٹرکشنز ہیں کہ اگر آپ نان امیگرینٹ ویزا کے لیے درخواست دینا چاہتے ہیں تو آپ کیسے کر سکتے ہیں. اس ویب سائٹ کا ایڈریس میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں. karachi.usconsulate.gov. اور اس ویب سائٹ پر آپ دیکھیں گے کہ ہمارے نان امیگرینٹ ویزا سیکشن ہے, اور اس پر سب ہدایت ہیں. اوکے, میں دیکھتی ہوں کہ طارق صاحب نے پوچھا تھا کہ شاید شاید ورک ویزاز کے بارے میں. تو آج ہم نان امیگرینٹ ویزاز کے بارے میں بات کریں گے. اور تو اس کا مطلب ہے یہ امیگریشن کرنے کے لیے نہیں ہے. ادھر کراچی میں ہم بس نان امیگرینٹ ویزاز کے ساتھ کام کرتے ہیں. اس کا مطلب نان امیگرینٹ ویزاز وہ مختصر دورانیے کے لیے ہیں, جو جیسے امریکہ میں گھومنے کے لیے اور پڑھنے کے لیے. کچھ نان امیگرینٹ ویزاز بھی ہیں جو امریکہ میں کام کرنے کے لیے ہیں, لیکن ان ویزوں کے لیے آپ بہت ضروری ہے کہ ایک پٹیشن ہو جو امریکی بزنس کی طرف سے جمع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, کوئی اور سوال ہے؟ I have a question from someone. ایک سوال ہے. So someone said, how much time when do they need to enter the US after getting a B1, B2 visa? ٹھیک ہے, تو سوال ہے کہ B1 B2 ویزا ملنے کے بعد آپ کو کب امریکہ جانا پڑے گا. اور اس کا جواب ہے کہ اگر ہم آپ کو 5 سال کا ویزا دیتے ہیں ملٹیپل انٹری, تو اس کا مطلب ہے کہ ایشو ڈیٹ سے ایکسپائریشن ڈیٹ تک یہ ویزا ویلڈ ہے. اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ 5 سال امریکہ میں رہ سکتے ہیں. جیسے میں نے کہا یہ ٹورسٹ ویزا ہے, یہ گھومنے کے لیے ہے, لیکن کوئی خاص ڈیٹ تاریخ نہیں ہے. اگر آپ ان 5 سالوں کے اندر امریکہ جاتے ہیں تو یہ ویزا ویلڈ ہو جائے گا. So the other question is, if, for example, I'm applying for maybe a meeting, and then I don't go to that meeting, can I use the B1, B2 later for another reason like tourism? Okay. تو سر نے پوچھا تھا کہ اگر مجھے کوئی خاص بزنس مقصد کے لیے ویزا مل جاتا ہے اور کہ مجھے اس ملاقات میں جانے کی ضرورت نہیں, تو کیا میں بعد میں اس ویزا کے ساتھ جا سکتا ہوں. اور اس کا جواب ہے کہ آپ ہماری ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی ایکٹیویٹیز آپ B1 B2 ویزا کے ساتھ کر سکتے ہیں. تو بزنس میٹنگز, گھومنے, شاید رشتہ داروں سے ملنے کے لیے, اور یہ سب ایکٹیویٹیز آپ کے ویزا پہ آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو ملٹیپل انٹری 5 سال کا ویزا مل گیا تھا یا پھر شارٹر ویزا مل گیا تھا, تو آپ ان سب ایکٹیویٹیز اور یہ سب ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں امریکہ میں.
मुलाकात में जाने, रिश्तेदारों से मिलने, घूमने वगैरह. आप अमेरिका में काम नहीं कर सकते हैं, आप अमेरिका में नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन आप दूसरे मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. So Pakistanis living in Muscat or Dubai or Jeddah, can they apply for a US visa in Jeddah or Muscat or Dubai, or do they need to do it in Pakistan? ठीक है. और तो सर ने पूछा था कि अगर पाकिस्तानी लोग बाहर रहते हैं, जैसे अगर वो मस्कत में रहते हैं, दुबई, अबू धाबी वगैरह, सऊदीया, क्या उनको उन मुल्कों में वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर कराची में? इसका जवाब है कि आप किसी मुल्क में वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कभी कभार अगर आप कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन आप बस मुख्तसर दौरानिए के लिए दुबई में रह रहे हैं वगैरह, तो शायद वीज़ा ऑफिसर आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में दरख्वास्त देना बेहतर है. लेकिन कोई ख़ास हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. आप किसी मुल्क में अप्लाई कर सकते हैं. So can you repeat again where they can find basic visa information? ठीक है. तो बेसिक वीज़ा इंफॉर्मेशन हमारी वेबसाइट पे पाया जाता है, और हमारा वेबसाइट karachi.usconsulate.gov. और ये तो ये फेसबुक पेज नहीं है. फेसबुक पेज पे बहुत ज़्यादा मालूमात है, लेकिन सब ऑफिशियल मालूमात वीज़ों के बारे में इस वेबसाइट पे है. और इस पर कुछ लिंक्स हैं. और अप्लाइंग फॉर यूएस वीज़ा आप एक और वेबसाइट के ज़रिए करेंगे, तो हिदायत हमारे वेबसाइट पे हैं, और फिर आपको दूसरे वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, जो है www.ustraveldocs.com/pk. और ये वीज़ा के लिए अप्लाई करने हैं. ओके, तो मुझसे पूछा गया है कि कि दरख्वास्त देने के लिए कौन सी कागजात की ज़रूरत है, कौन सी डॉक्यूमेंट्स, इंटरव्यू में कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं. और मैं दोबारा कहती हूँ कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. कभी कभार ऑफिसर आपसे पूछेंगे कि अगर आप घूमने के लिए जाना चाहते हैं, कि आप इस सफ़र पर कितना ख़र्च करना चाहेंगे, और अगर आप कहते हैं कि मैं इतना ख़र्च करना चाहता हूँ, तो शायद वो आपसे पूछेंगे कि बैंक स्टेटमेंट्स दिखाए, मुझे दिखाए कि आपके पास काफ़ी पैसा है वगैरह. और डॉक्यूमेंट्स कभी कभार हम फैमिली रिलेशनशिप्स के बारे में पूछते हैं. अगर आप बच्चों के साथ अप्लाई करें, शायद हम देखना चाहेंगे कि फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह ये असल में ये आपके बच्चे हैं, लेकिन कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है. और आमतौर पर अगर ऑफिसर चाहता है कि वो एक और डॉक्यूमेंट देखें, तो आप शायद इंटरव्यू के बाद आप सबमिट कर सकते हैं, लेकिन बस अगर ऑफिसर देखना चाहता है. लेकिन मैं आपसे एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि अमरीकी वीज़ा प्रोसेस वो इंटरव्यू पर मबनी है, और तो ज़्यादातर हम डॉक्यूमेंट्स नहीं देखते हैं. अगर हम आपकी बात मानते हैं तो डॉक्यूमेंट्स देखने की ज़रूरत नहीं है. कभी कभार बस इंटरव्यू बस हम पूछेंगे. तो अगर आपने माजी में वीज़ा के लिए अप्लाई किया था और आपने सोचा था कि ऑफिसर ने मेरे डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे थे, इसका मतलब नहीं है कि डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत थी. इसका मतलब है कि डॉक्यूमेंट्स देखने की ज़रूरत नहीं थी. बस इंटरव्यू के बेसिस पर उन्होंने वीज़ा के बारे में फ़ैसला किया था. Could you once again remind them the difference between a work and a visitor visa, what's allowed on either or, and with the student visa, is work allowed? एग्ज़ाम के वीज़ों के बारे में क्या फ़र्क है? कुछ वीज़ाज़ काम करने के लिए हैं, कुछ वीज़ाज़ बस घूमने के लिए हैं. तो the most common type of visa B1 B2 है, और B1 B2 वीज़ा घूमने के लिए, बिज़नेस के लिए है.
और इसके साथ आप रिश्तेदारों से मिल सकते हैं वगैरह. लेकिन B1 B2 वीज़ा के साथ आप काम नहीं कर सकते हैं, इजाज़त नहीं है. कुछ और वीज़ास हैं जो अमेरिका में काम करने के लिए हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, तो मसलन H1B वीज़ा, L1 वीज़ा और उन किस्म के वीज़ास आपको एक पिटिशनर है अमेरिका में जिनको आपके काम की ज़रूरत है और वो पिटिशन जमा करते हैं. आप खुद पिटिशन जमा नहीं कर सकते हैं अमेरिका में काम करने के लिए वीज़ास के लिए. और स्टूडेंट वीज़ास, किसी ने पूछा था कि स्टूडेंट वीज़ा के साथ क्या आप अमेरिका में काम कर सकते हैं. तो स्टूडेंट वीज़ास में थोड़ा सा फ़र्क है. आप तो यूनिवर्सिटी के अंदर काम कर सकते हैं पार्ट टाइम, लेकिन स्टूडेंट वीज़ास जो हैं वो अमेरिका में काम करने के लिए नहीं है, वो अमेरिका में पढ़ने के लिए हैं. तो इसका मतलब है कि आपको काफ़ी पैसा होना चाहिए अपने पढ़ाई के लिए, अखराजात उठाने के लिए आपके पास होना चाहिए. और अगर आपको थोड़े से और पैसे की ज़रूरत है, बस लिविंग एक्सपेंसेस वगैरह, आप पार्ट टाइम यूनिवर्सिटी के अंदर काम कर सकते हैं, लेकिन आप फुल टाइम काम नहीं कर सकते हैं और आप यूनिवर्सिटी कॉलेज से बाहर काम नहीं कर सकते. So I have U.S. relatives. I mean, relatives in the U.S. Does this have an impact on my visa? ठीक है. तो सर ने पूछा था कि अगर मेरे कुछ रिश्तेदार हैं अमेरिका में, क्या इसका मतलब है कि मुझे वीज़ा मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा. और इसका जवाब है कि ये मुनहसर करता है. कुछ लोग सोचते हैं कि स्पॉन्सर्ड होने की ज़रूरत है, कि अगर कोई फैमिली मेम्बर है अमेरिका में वो स्पॉन्सर कर सकते हैं. और अमेरिकी वीज़ा वो शायद शेंगन वीज़ा से थोड़ा सा मुख्तलिफ है. स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं है. अगर अमेरिका में कोई एक खाला चाचा है जो आपके सफ़र के लिए अखराजात उठाएगा, तो ये तो ठीक है और आप ऑफिसर को बता सकते हैं कि अमेरिका में कौन है. लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आपको वीज़ा मिल जाएगा, कि आपको वीज़ा नहीं मिल जाएगा. एक और गलतफहमी जो पाई जाती है, कुछ लोग सोचते हैं कि एफिडेविट ऑफ सपोर्ट की ज़रूरत है और ये एक ख़ास डॉक्यूमेंट है जिसका मतलब है कि अमेरिका में किसी ने कहा कि मैं सब अखराजात उठाएगा. नॉन इमिग्रेंट वीज़ा के लिए एफिडेविट ऑफ सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है. ये डॉक्यूमेंट जो है वो बस इमिग्रेंट वीज़ास के लिए है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है नॉन इमिग्रेंट वीज़ा के लिए. ओके, तो सुलेमान साहिब ने पूछा था कि do you have priority visa service for senior citizens? तो priority visa service कोई ख़ास priority visa service नहीं है, लेकिन senior citizens के लिए थोड़ा सा फ़र्क है. अगर आपकी उम्र 79 से ज़्यादा है तो आप वीज़ा वेवर, माफ़ कीजिए, इंटरव्यू वेवर प्रोग्राम के ज़रिए अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन शायद आपकी दरख्वास्त इंटरव्यू वेवर प्रोग्राम के ज़रिए मंजूर हो जाएगा, शायद नहीं, शायद हम फिर भी इंटरव्यू करना चाहेंगे. सीनियर सिटीजन्स, अगर आपके लिए अकेले बात करना मुश्किल है या फिर तो अटेंडेंट आ सकता है आपके साथ. शायद एक पोता पोती बेटा बेटी आपके साथ आ सकता है और आपकी मदद कर सकती है अगर मोबिलिटी इश्यूज हो वगैरह. जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो आप ये ऑप्शन ले सकते हैं कि अटेंडेंट आपके साथ आ जाएगा. Can you also tell me why the visa officer never gives the reason for the refusal?
तो सर ने पूछा था कि वीज़ा ऑफिसर क्यों कभी नहीं वजह देता है कि उन्होंने क्यों वीज़ा रिफ्यूज़ किया था और तो मेरा जवाब ये है कि हम हमेशा वजह देते हैं हम आपको एक लेटर देते हैं अगर वीज़ा मंजूर हो जाए तो हम लेटर देते हैं इस पर लिखा हुआ है कि आमतौर पर आपकी एप्लीकेशन Section 214B of the Immigration and Nationality Act is refused under that section. और इसका मतलब है कि आपके ties जो हैं पाकिस्तान के साथ वो काफ़ी मजबूत नहीं है और ties का एक ही मतलब नहीं है लेकिन इसका मतलब है कि आपको ऑफिसर को कन्विंस करना पड़ता है कि आप मुख्तसर दुरानिये के बाद पाकिस्तान वापस आने का इरादा रखते हैं और अगर इंटरव्यू के बेसिस पर ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं है तो हमारे कवानीन के तहत हम वीज़ा नहीं दे सकते हैं हमारा कानून इस तरह है कि आपको ऑफिसर को कन्विंस करना पड़ता है कि आप सही से वीज़ा इस्तेमाल करेंगे I've been refused once. Should I reapply? I've been refused twice. Should I reapply? ठीक है तो कोई अगर आपकी दरखास्त सेक्शन 214B के तहत रिफ्यूज हो गई थी तो कोई इनएलिजिबिलिटी नहीं है इसका मतलब है कि आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं लेकिन हम हमेशा लोगों को ये मशवरा देते हैं कि अगर उनके हालात में कुछ भी नहीं बदल गए पिछले इंटरव्यू के बाद तो वो दोबारा अप्लाई नहीं करें क्योंकि the decision will likely be the same तो जी लेकिन ये आपकी मर्जी है क्योंकि हमारे कवानीन के तहत आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं ओके सो जाहिद साहब ने पूछा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग मतलब है कि ऑफिसर इंटरव्यू के वक्त पर वीज़ा पर फैसला नहीं कर सकता है और कि थोड़ा सा और वक्त लगेगा इसमें और आमतौर पर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग ज़्यादातर केसेस वो 1 महीने के अंदर तय हो जाते हैं लेकिन इसका कई मतलब है लेकिन the simplest is कि और ज़्यादा वक्त लगेगा क्योंकि वो अभी वीज़ा विंडो पे फैसला नहीं कर सकते हैं Is it possible to change visa status? ठीक है तो मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगी क्योंकि हमारे इमिग्रेशन कवानीन जो हैं वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं जो मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप B1 B2 वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं और कि आप अमेरिका में पढ़ना चाहते हैं या अमेरिका में काम करना नहीं चाहते हैं तो आपका वीज़ा वो रिफ्यूज़ हो जाएगा तो जब आप वीज़ा इंटरव्यू करते हैं जब आप आते हैं इधर आपको हमें पूरी सच बताने की ज़रूरत है कि आप अमेरिका में क्या करना चाहते हैं क्योंकि अगर आप ऑफिसर को बताते हैं कि आप अमेरिका घूमने के लिए जाना चाहते हैं फिर अमेरिका में आप अपने स्टेटस को बदल करने की कोशिश करते हैं तो you could possibly have an ineligibility that would make it difficult for you to change your status. आपको अगर आप अमेरिका में पढ़ना चाहते हैं तो आपको स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा अगर आप अमेरिका में काम करने के लिए तो आपको पिटिशन जमा करवाना पड़ेगा ठीक है Can you repeat the basic visa information sites? Okay. So for basic information मालूमात अमेरिकी वीज़ाओं के बारे में हमारी वेबसाइट सबसे बेहतरीन रिसोर्स है वो karachi.usconsulate.gov और ये अमेरिकी कॉन्सुलेट कराची का वेबसाइट है इस पर सब इंस्ट्रक्शंस हैं सब हिदायत हैं कि आप वीज़ा के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं मैं आपको एक और वेबसाइट देती हूँ जो बहुत फ़ायदेमंद है जो बहुत हेल्पफुल है is travel.state.gov और इस पर आप एक और लिंक है US वीज़ास के बारे में इस पर एक वीज़ा विज़ार्ड है so you could try the visa wizard और ये visa wizard आपको
बताएगा कि किस किस्म का वीज़ा आपके लिए सबसे बेहतरीन है. How does one prove strong ties to Pakistan? Okay, so हमसे पूछा गया है कि ties to पाकिस्तान क्या मतलब और हम कैसे इसको साबित कर सकते हैं. और ठीक है, तो ties का मतलब है it could be your financial ties, तो आप family ties, काम के ties वगैरह. So like जो मैं okay बहुत मुश्किल है, लेकिन ये इंटरव्यू पर मनहज़र करते हैं. तो ऑफिसर आपको कुछ सवालात पूछेंगे, ओके, और आपको सवालात का सही जवाब देना पड़ेगा. और मुख्तलिफ ऑफिसर्स मुख्तलिफ सवालात पूछते हैं, और वो हमेशा दूसरे like trying to get it the full picture. तो मैं आपको कोई ख़ास एडवाइस मशवरा नहीं दे सकती कि आपको ये दिखाना पड़ेगा. आपको बस जब ऑफिसर पूछता है कि आपके फैमिली के बारे में, आपके काम के बारे में, आपके प्रॉपर्टी के बारे में वगैरह, बस सही जवाब दे दें, और ऑफिसर उन सब मालूमात पर इस्तेमाल करेगा अपने फैसला करने के लिए. Travel history? ट्रैवल हिस्ट्री भी बहुत ज़रूरी है. शायद ऑफिसर आपसे पूछेंगे कि आप पाकिस्तान से बाहर कहाँ जा चुके हैं, लेकिन दोबारा कोई ख़ास रूल नहीं है कि अगर आप कभी नहीं गए तो आपको वीज़ा नहीं मिल जाएगा. कोई ख़ास रूल नहीं है कि अगर आप उन सारे मुल्कों में जा चुके हैं आपको वीज़ा मिल जाएगा. ट्रैवल हिस्ट्री में ऑफिसर शायद इसके बारे में पूछेंगे, लेकिन कोई black and white hard and fast rule नहीं है इसके बारे में. Okay, so Miss Amreen asks, is it mandatory that an applicant should have traveled to another country? So जैसे मैंने कहा, ये mandatory नहीं है. Officer पूछेगा आपकी travel history के बारे में, आपके पढ़ाई के बारे में वगैरह, और officer पूरी तस्वीर देखता है, और and then tries to assess your ties. और शायद अगर आपके ties जो है, अगर वो अभी बहुत मजबूत नहीं है, बहुत strong नहीं है, शायद मुस्तकबिल में वो और ज़्यादा strong होंगे. तो इसलिए it's hard to say, one thing is necessary. You remind them we're getting hundreds of questions all at once, so please be patient and we'll try to respond to the general areas. So, sir, कह रहे हैं कि हमें बहुत ज़्यादा questions मिल जा रहे हैं, और कि हम सब का जवाब देने की कोशिश करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा हैं. So, bit of a tricky one. I'm Muslim. Can I apply to go to the United States? I'm Muslim. Can I apply? आप ज़रूर apply कर सकते हैं. आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका में Muslim community जो है वो बहुत बड़ी है, वो बढ़ रही है, और आप बिल्कुल apply कर सकते हैं. हम religion की basis पर हमारे फैसले नहीं करते. And family visa, same as individual visa? Family visa same as individual. जी, एक जैसे हैं. आप B1 B2 वीज़ा है, ये families के लिए, ये individuals के लिए भी है. Okay, और तो आसिफ साहिब ने पूछा था कि is there a visa lottery program for Pakistanis? तो visa lottery program अभी पाकिस्तान में नहीं है, और इसकी वजह है कि ये प्रोग्राम जो है, और हम diversity visa program कहते हैं, माजी में तो वो बस उन मुल्कों के लिए जहाँ बहुत immigrants नहीं है अमेरिका में, अगर आप समझते हैं. तो मैं बताने की कोशिश करती हूँ. 104,000. ठीक है, तो 104,000. तो इसका मतलब है कि पिछले साल अगर 1 लाख से ज़्यादा
पाकिस्तानी लोग अमेरिका इमिग्रेशन पे गए हैं, तो इसका मतलब है कि अगले साल पाकिस्तान में वीज़ा लॉटरी प्रोग्राम, डाइवर्सिटी वीज़ा प्रोग्राम नहीं होगा. Number 7 in the world now. जी. और क्योंकि ये प्रोग्राम जो है वो डाइवर्सिटी के लिए है. इसका मकसद है कि वो मुल्क जहाँ अमेरिका में बरादरी इतनी बड़ी नहीं है, हम डाइवर्सिटी, हमारे इमिग्रेंट्स में हम और ज़्यादा डाइवर्सिटी चाहते हैं. लेकिन पाकिस्तानी बरादरी अमेरिका में बहुत बड़ी है. बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी लोग अमेरिका इमिग्रेट हो चुके हैं, तो इसलिए हम दूसरे मुल्कों को ये अपॉर्चुनिटी देते हैं. Immigrant visas in Islamabad and Karachi both, or only Islamabad? जी, तो इमिग्रेंट वीज़ास वो बस इस्लामाबाद में करते हैं. तो हम इधर कराची में हम नॉन इमिग्रेंट वीज़ास करते हैं. तो अगर आपकी कोई पिटिशन पेंडिंग है, अगर आप अमेरिका में रहने के लिए जाना चाहते हैं, तो आपको इस्लामाबाद में वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा. Bank statement again? बैंक स्टेटमेंट, जैसे मैंने कहा पहले, बैंक स्टेटमेंट्स तो आप इंटरव्यू में ले सकते हैं. और अगर आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करें तो बैंक स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है. नॉन इमिग्रेंट वीज़ा के लिए शायद ऑफिसर पूछेगा और शायद ऑफिसर देखना चाहेगा, शायद नहीं, ये मनहज़र करता है. लेकिन आप इंटरव्यू को ले सकते हैं. अगर वो पूछते हैं तो आप दिखा सकते हैं. Can I enter on my visa? Do I need 6 months validity on my visa to enter the States? आपके पासपोर्ट जो है वो 6 months की वैलिडिटी की ज़रूरत है. 6 months वीज़ा नहीं. तो आप वीज़ा के एक्सपायरेशन तक अमेरिका जा सकते हैं, लेकिन आपके पासपोर्ट जो है वो 6 months के लिए वैलिड होना चाहिए. और मुझसे पूछा गया है कि is there something called a fiancé visa? फियांसे वीज़ा ये एक किस्म का इमिग्रेंट वीज़ा है. तो हम कराची में फियांसे वीज़ास प्रोसेस नहीं करते हैं. फियांसे वीज़ा का मतलब है कि आप अमेरिका जाने के बाद 90 days के अंदर शादी करना चाहते हैं अमेरिकी सिटीजन से. और लेकिन हम कराची में ये वीज़ास नहीं प्रोसेस करते हैं. आपको अमेरिकी एम्बेसी इस्लामाबाद की वेबसाइट पर देखना चाहिए. Okay. Okay, एक और सवाल है. If the college gives me admission, is the visa guaranteed? इसका जवाब है कि नहीं. आपको फिर भी वीज़ा के लिए दरखास्त देने की ज़रूरत होगी, और आपको फिर भी इंटरव्यू करना पड़ेगा. Can you talk about fraud? I've been getting a lot of emails about diversity visas. You say they're not available for Pakistan. What fraud indicators should I worry about? जी, तो हम लोग इधर अमेरिकी कॉन्सुलेट में हम बहुत ज़्यादा फ्रॉड देखते हैं. हम बहुत ज़्यादा स्कैम्स देखते हैं कि लोग जाहिर करते हैं कि वो अमेरिकी हुकूमत से हैं और वो पैसे मांगते हैं, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगते हैं वगैरह. एक चीज़ हमेशा देखिए, अगर एक ईमेल अमेरिकी हुकूमत से है तो इसका ईमेल एड्रेस the ending will be .gov for government. अगर आपको कोई ईमेल मिल जाता है जो दूसरी ईमेल एड्रेस से है, अगर uc.com या फिर .us या फिर वगैरह, तो इसका मतलब है कि ये अमेरिकी हुकूमत की तरफ से नहीं है. हमेशा ये देखें कि ईमेल किस से हैं. इसके अलावा अगर कोई गलतियाँ होती हैं, क्योंकि जब मैं ये फ्रॉड ईमेल्स देखती हूँ हमेशा इसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं अंग्रेज़ी में, और इसका मतलब शायद ये है कि ये असली ईमेल नहीं है. अगर आपको कोई ईमेल मिल जाते हैं और आप जानना चाहते हैं ये असली है या नहीं, तो आप हमारे ईमेल एड्रेस को ईमेल भेज सकते हैं karachivisaquery@state.gov. karachivisaquery@state.gov. Should I use an agent and then remind again where to apply for the basic information about visas?
ठीक है तो हमसे पूछा गया है कि should I use an agent to apply for my visa ये आपकी मर्ज़ी है अगर आप ट्रैवल एजेंसी के ज़रिए दरख्वास्त देना चाहते हैं आप ज़रूर कर सकते हैं बस you should be careful अगर वो try to say you should जाली कागजात इस्तेमाल करें या फिर अगर वो कहते हैं कि फ़ीस और ज़्यादा है हमारी फ़ीस जो है वीज़ा दरख्वास्त देने के लिए फ़ीस $160 है अगर वो और फ़ीस लेना चाहते हैं तो बस just be a little bit careful जब आप travel agent के ज़रिए जाते हैं और you should never ever जाली कागजात इस्तेमाल करें क्योंकि अगर आप जाली कागजात इस्तेमाल करें और ऑफिसर को पता चलाएं तो आप इसका मतलब हो सकता है कि आप हमेशा के लिए अमेरिकी वीज़ा के लिए एलिजिबल नहीं होंगे इनएलिजिबिलिटी आपको मिल जा सकता है Okay, I applied for the U.S. visa from Australia and I was refused and told that I don't have strong ties to Pakistan. What should I do? Okay, तो जैसे मैंने पहले कहा अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए तो आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं लेकिन अगर आपके हालात एक जैसे हैं अगर कुछ भी नहीं बदल गया तो इसका मतलब शायद ये है कि आपका वीज़ा अभी भी मंजूर नहीं हो जाएगा कभी कभार अगर आप किसी दूसरे मुल्क में वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं कभी कभार ऑफिसर आपको बताएगा कि आप अपने मुल्क में पाकिस्तान में दोबारा अप्लाई करें तो मुझे पता नहीं है कि जब आपने ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई किया था उन्होंने क्या कहा लेकिन ये आपकी मर्ज़ी है अगर आप पाकिस्तान में दोबारा अप्लाई करना चाहते हैं लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ऑफिसर ने आपके टाइज के बारे में पूछा था इधर पाकिस्तान में वो भी आपके टाइज के बारे में पूछेंगे अगर कोई भी फ़र्क नहीं है तो शायद वीज़ा का फ़ैसला एक जैसा होगा Can you emphasize 3 times for the listener who's not paying attention where the immigrant visas are held, Karachi or Islamabad? ठीक है तो मैं दोबारा से बताती हूँ कि इमिग्रेंट वीज़ास जो हैं अगर आपकी फैमिली ने आपके लिए इमिग्रेशन पिटिशन जमा किया तो आपको यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद में वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा हम कराची में इमिग्रेंट वीज़ा नहीं एक्सेप्ट करते हैं हम कुछ किस्म के वर्क वीज़ास वगैरह लेकिन इमिग्रेशन के लिए ग्रीन कार्ड ये सब मामलात के लिए आपको अमेरिकी एम्बेसी के ज़रिए अप्लाई करना पड़ेगा So I've been refused 3 times in Islamabad. Will it be easier for me to get the visa if I come to Karachi? ठीक है तो सवाल है कि अगर मेरे दरख्वास्त 3 बार रिफ्यूज़ हो चुकी है इस्लामाबाद में क्या मुझे कराची अगर मैं कराची आऊँ तो रिज़ल्ट्स नतीजा मुख्तलिफ होगा और आप हमेशा दोबारा अप्लाई कर सकते हैं लेकिन जैसे मैंने कहा हम हमेशा ये मशवरा देते हैं अगर आपके हालात एक जैसे हैं अगर कुछ भी नहीं बदल गया तो फैसला एक जैसा होगा अगर आपका वीज़ा 3 बार रिफ्यूज़ हो गया है तो it's not likely कि वो अभी मंजूर हो जाएगा अगर आप कराची आए Have you seen the movie Chef? The movie Chef उन्होंने पूछा था मैंने शेफ की फिल्म देखी नहीं कभी नहीं I haven't seen Chef. And a reminder again, I'm in Dubai, I'm in Muscat, I'm in Jeddah, I'm in some other place, I'm Pakistani. Can I apply at the U.S. Consulate or Embassy there? ठीक है तो उन्होंने पूछा था कि क्या मैं दूसरे किसी और मुल्क में वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता हूँ इसका जवाब है कि हाँ आप कर सकते हैं लेकिन शायद ऑफिसर आपको बताएगा कि आपको अपने मुल्क में अप्लाई करना पड़ेगा ये इंटरव्यू पर मनहज़र करते हैं शायद आपका वीज़ा मंजूर हो जाएगा वहाँ पे शायद नहीं और ये मनहज़र करता है कराची में लोग दूसरे मुल्कों से आते हैं और अपने वीज़ा एप्लीकेशंस देते हैं और कभी वो मंजूर हो जाते हैं कभी रिफ्यूज़ हो जाते हैं How is a visa interview assigned? You make the decision before the person comes to the interview?
ठीक है. So it's random and goes It's to, random. It's random. तो so you don't make the decision in advance. जी हम फैसला नहीं कर सकते हैं कि ओ मैं उनसे इंटरव्यू करूंगी और वो उनसे इंटरव्यू करेंगे. नहीं, ये बिल्कुल रैंडम है क्योंकि हर दरखास्त, हर एप्लीकेशन gets the same consideration. Okay, another question. Huda asks, I cannot upload my picture on the online visa application. Why is that? Okay, so Huda ने एक काफ़ी technical सवाल पूछा था और technical problems के लिए आपको ustraveldocs.com/pk के ज़रिए आपको उनको email भेजना पड़ेगा क्योंकि वो सब कुछ जो वेबसाइट के बारे में वो इसके साथ काम करते हैं. अगर आपके कोई सवाल है हमारे पॉलिसी के बारे में, प्रोसेस के बारे में वगैरह, तो आप हमें हमारे ईमेल एड्रेस को ईमेल भेज सकते हैं जो है karachivisaquery@state.gov. Bank statement again, lots of questions. Do I need one for the interview? ओके, तो बहुत ज़्यादा लोग बैंक स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहे हैं और तुम्हें दोबारा से बताती हूँ कि बैंक स्टेटमेंट की कोई ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है. तो लेकिन हो सकता है कि ऑफिसर बैंक स्टेटमेंट देखना चाहेगा और अगर ऑफिसर बैंक स्टेटमेंट देखना चाहता है और आपके पास नहीं है तो आपकी केस शायद एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग में हो जाएगी. तो बेहतर है, मेरे ख्याल में बेहतर है बैंक स्टेटमेंट लेना, लेकिन ये कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है कि आपके बैंक में इतना होना चाहिए और वगैरह, कोई रूल नहीं है. और शायद ऑफिसर को बैंक स्टेटमेंट देखने की ज़रूरत नहीं होगी और तो हो सकता है, लेकिन जी ज़रूर बैंक स्टेटमेंट अपने साथ लाएं और अगर ऑफिसर देखना चाहता है तो वो पूछेंगे. Any Starbucks at the consulate? Any Starbucks at the consulate? बदकिस्मती से कोई Starbucks नहीं है consulate में. Dunkin Donuts भी नहीं है. Embassy में Dunkin Donuts है लेकिन consulate में नहीं. पाकिस्तान में Starbucks है? नहीं है. Okay. Let's see. Does family mean blood relatives in terms of U.S. visa? ठीक है, तो immigration petitions जो हैं, जो family petition जमा करती हैं, तो जी ये इसका मतलब blood relatives है. लेकिन अगर आप non-immigrant visa के लिए apply करना चाहते हैं तो ऑफिसर आमतौर पर ऑफिसर आपसे पूछेगा कि अमेरिका में कोई दोस्त हैं या रिश्तेदार हैं. अमेरिकी कल्चर में अगर हम फैमिली कहते हैं तो इसका मतलब ब्लड रिलेटिव्स हैं. और अगर हम पूछते हैं कि क्योंकि कभी कभार पाकिस्तानी लोग कज़न ब्रदर कहते हैं तो अमेरिकी लोग नहीं समझते हैं कज़न ब्रदर क्या मतलब. इट्स कज़न चाहे या ब्रदर चाहे. तो अगर ऑफिसर फैमिली के बारे में पूछता है तो ऑफिसर ब्लड रिलेटिव्स के बारे में पूछ रहा है. I have a pending immigrant visa. Will that affect my visitor visa? ठीक है, तो अगर इमिग्रेंट वीज़ा पेंडिंग है तो हो सकता है कि इसका अफेक्ट होगा, हो सकता है कि नहीं. ये मनहज़र करता है क्योंकि जैसे मैंने कहा ऑफिसर जानना चाहता है कि आपके टाइज पाकिस्तान के साथ वो मजबूत हैं या नहीं. अगर इमिग्रेशन पिटिशन पेंडिंग है और आप 1 साल के अंदर अमेरिका में इमिग्रेशन करना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि आपके टाइज पाकिस्तान के साथ वो मजबूत नहीं है. अगर आपके शायद आपके भाई ने इमिग्रेशन पिटिशन जमा किया और ये पिटिशन आपको शायद 10-15 सालों के अंदर ग्रीन कार्ड मिल जाएगा तो इसका मतलब हो सकता है कि आपके टाइज अभी पाकिस्तान के साथ बहुत मजबूत हैं. तो ये मनहज़र करता है. अगर इमिग्रेशन पिटिशन पेंडिंग है तो आप नॉन इमिग्रेंट वीज़ा के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं, लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा कि
आपके ties बहुत मजबूत हैं कि आप short trip के बाद पाकिस्तान वापस आने का इरादा रखते हैं. Can I have an F1 and a B1 B2 visa at the same time, or will they cancel one or the other? उन्होंने पूछा था कि क्या मेरे पास B1 B2 और F1 एक ही वक्त में दोनों हो सकते हैं, और इसका जवाब है कि बिल्कुल आपको आप के पास दोनों वीज़ास हो सकते हैं. Basic information again, how to find visa information, and then maybe the fiancé visa again. ओके, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं कैसे US वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, तो आपको हमारी US Consulate वेबसाइट पर देखना पड़ेगा. तो आप अभी फेसबुक पेज पे हैं, लेकिन ऑफिशियल सरकारी US Consulate कराची वेबसाइट पे सब मालूमात है, सब हिदायत हैं. ये karachi.usconsulate.gov और इस पर नॉन इमिग्रेंट वीज़ास पर क्लिक करें, और सब हिदायत इसमें है. आप एक और वेबसाइट जो बहुत यूज़फुल है, जो आप देख सकते हैं, ये travel.state.gov. और जब आप travel.state.gov पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि US वीज़ास के बारे में एक पूरी बॉक्स है. इस पर क्लिक करें. इस पर बहुत अच्छी मालूमात हैं कि टूरिज़म वीज़ास के लिए, बिजनेस के लिए, एम्प्लॉयमेंट, स्टडी, इमिग्रेशन वगैरह सब कुछ travel.state.gov पाया जाता है. Fiancés. और फिर दोबारा से किसी ने फियांसे वीज़ा के बारे में पूछा था. फियांसे वीज़ास ये एक किस्म का इमिग्रेंट वीज़ा है, और जैसे मैंने कहा सब इमिग्रेंट वीज़ास पाकिस्तान के लिए वो इस्लामाबाद में प्रोसेस हो जाते हैं. हम कराची में बस नॉन इमिग्रेंट वीज़ास करते हैं. Why does it take so long to get a family-based immigrant visa? Why does it take so long to get a family-based immigrant visa? तो जैसे मैंने कहा हम इमिग्रेंट वीज़ास नहीं करते हैं, लेकिन इसका जवाब है कि हर साल अमरीकी कांग्रेस ये नंबर्स देते हैं कि इस साल में कितने मुख्तलिफ किस्म के इमिग्रेंट वीज़ास के लिए कितने लोग पूरी दुनिया से आ जाएंगे, और इस बेसिस पर हम लाइक वेटिंग टाइम डिसाइड करते हैं. और ये बस पाकिस्तान के लिए नहीं है, ये सब मुल्कों में वेटिंग टाइम एक जैसा है. एक और सवाल, why doesn't consulate provide sufficient and detailed reason for visa refusal? जैसे मैंने पहले से कहा, वीज़ा रिफ्यूज़ल की वजह आमतौर पर ये है कि ऑफिसर के मुताबिक आपके टाइज जो हैं पाकिस्तान के साथ वो काफ़ी मजबूत नहीं है, और लोग सोचते हैं कि एक ही वजह होनी चाहिए कि ट्रैवल हिस्ट्री की वजह से, कि काम के वगैरह, और हम एक ही वजह नहीं दे सकते हैं क्योंकि एक ही वजह नहीं है. ऑफिसर आपकी पूरे हालात के बारे में पूछते हैं और पूरी तस्वीर को देखता है कि आपके टाइज पाकिस्तान के साथ मजबूत हैं या नहीं. तो इसलिए हम एक ही वजह नहीं दे सकते हैं, और हम बस कहते हैं कि आपके टाइज पाकिस्तान के साथ काफ़ी मजबूत नहीं है. What about sponsors? Sponsors, Can it be a hotel? Does it have to be a family member? What's better? Does it make a difference? ठीक है. तो मैं दूसरे मुल्कों के वीज़ा प्रोसेसेस के बारे में ज़्यादा मुझे पता नहीं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि उन दूसरे मुल्कों के लिए स्पॉन्सर्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अमरीकी वीज़ा के लिए, अमरीकी नॉन इमिग्रेंट वीज़ा के लिए स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं है. अगर आप खुद अखराजात उठाना चाहते हैं ये ठीक है, अगर किसी और आपके अखराजात उठाएगा ये भी ठीक है, लेकिन कोई ख़ास स्पॉन्सर होने की ज़रूरत नहीं है. ऑफिसर बस पूछेगा कि आप अमेरिका में आप क्यों अमेरिका जाना चाहते हैं, क्या आप का इरादा अमेरिका आप रिश्तेदारों से मिलेंगे, आप घूमने जाएंगे वगैरह, लेकिन स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं है. और कुछ लोग हमें एफिडेविट ऑफ सपोर्ट देते हैं, ये एक ख़ास फॉर्म है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट ये बस इमिग्रेंट वीज़ा के लिए. इमिग्रेंट वीज़ा के लिए स्पॉन्सर बहुत ज़रूरी है.
نان امیگرینٹ ویزا کے لیے نہیں، بس آپ کو آفیسر کو بتانا پڑے گا کہ آپ امریکہ میں کیا کرنا چاہتے ہیں، کیوں امریکہ جانا چاہتے ہیں، اور کہ اخراجات جو ہیں کون اٹھائے گا. What about having a visa but still being stopped at the port of entry? Visa gives you permission to go to port, and immigration officers still. جی، تو ہم سے پوچھا گیا تھا کہ کبھی کبھار لوگوں کے پاس ویزا ہے، لیکن جب وہ امریکہ پہنچتے ہیں تو وہ تھوڑی سی اور پروسیسنگ ہو جاتی ہے. اور اس کی وجہ ہے کہ ویزا آپ کو امریکہ جانے کی اجازت دیتا ہے، لیکن آفیسر جو امریکی بارڈر پہ، جو امریکی سرحد پہ کام کرتا ہے، اس کی وہ بھی آپ کو کچھ اور سوالات پوچھیں گے، اور وہ خود یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ ملک کے اندر جا سکتے ہیں یا نہیں. تو ویزا آفیسر بس ویزا پر فیصلہ کرتا ہے، اور ویزا اٹ گیوز یو دا رائٹ ٹو گو اپ ٹو دا پوائنٹ آف انٹری، اور پھر عام طور پر وہ آپ کو اندر جانا دیتے ہیں. لیکن کبھی کبھار اگر لوگ بارڈر پر پہنچتے ہیں اور یہ آفیسر کو واضح ہے کہ یہ آدمی امریکہ میں کام کرنا چاہتے ہیں یا امریکہ میں رہنا چاہتا ہے، بس گھومنا نہیں، تو وہ اندر دینے کی اجازت نہیں دیتے ہیں. What about medical visas? I want to get treatment in the States. ٹھیک ہے، تو B1 B2 ویزا جو ہے، جو نان امیگرینٹ ویزا جو ہم نے کہا، اس ویزا کے ساتھ آپ امریکہ میں میڈیکل علاج کروا سکتے ہیں. بس ایک چیز جو بہت ضروری ہے کہ آپ کو خود علاج کے سب اخراجات اٹھانے پڑیں گے. اوکے، تو اگر آپ علاج کے لیے جانا چاہتے ہیں اور آپ انٹرویو کے لیے آتے ہیں، تو آپ کو آفیسر کو دکھانا پڑے گا کہ آپ کا ارادہ سب اخراجات خود اٹھانا ہے. اور لیکن اگر آپ علاج کے لیے جانا چاہتے ہیں تو ضرور آفیسر کو بتائیں اور سب وضاحت دے دیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ کیسے اخراجات اٹھائیں گے. ٹھیک ہے، تو کسی نے پوچھا تھا do we need to take an English language proficiency test like IELTS to apply for US visa? جی نہیں، میں خود ویزا انٹرویوز کرتی ہوں، مجھے تھوڑی سی اردو آتی ہے، تو آپ اردو میں ویزا انٹرویو کر سکتے ہیں. انگریزی بولنا کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارے ویزوں کے لیے. آپ ضرور اپلائی کر سکتے ہیں. کچھ اسٹوڈنٹ ویزاز کے لیے، کچھ اگر آپ امریکہ میں پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ویزا اپلائی کرنے کے لیے درخواست دینے سے پہلے آپ کو کسی امریکی یونیورسٹی میں داخلہ لینا پڑے گا. اور کچھ یونیورسٹیز داخلے کے لیے وہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے، ان کی ضرورت ہے کہ آپ IELTS یا کسی اور انگلش لینگویج ٹیسٹ لیں. تو کچھ اسٹوڈنٹ ویزاز کے لیے انگلش ٹیسٹ ضروری ہے، لیکن بس گھومنے کے لیے انگریزی بولنے کی ضرورت نہیں ہے. What about renewing green cards and renewing visas? Is that possible? Renewing green cards، تو گرین کارڈ ایک قسم کا امیگرینٹ ویزا ہے، تو آپ کو اسلام آباد کے ذریعے سب گرین کارڈ کے سوالات پوچھنا پڑے گا. لیکن رینیوئنگ ویزا تو کوئی خاص پروسیس نہیں ہے ویزا کو رینیو کرنے کے لیے. ویزا ٹو رینیو اے ویزا اور نیا ویزا، نئی درخواست دینے جیسے ہیں، سو دیر از نو، کوئی فرق نہیں. احسن صاحب نے پوچھا تھا کہ اگر ان کے والدین کے پاس گرین کارڈ ہے، کیا وہ وزٹ ویزا کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہے کہ ضرور آپ وزٹ ویزا کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو سب لوگوں کی طرح آپ کو دکھانا پڑے گا کہ آپ
मुख्तसर दुरानिये के बाद शॉर्ट ट्रिप के बाद पाकिस्तान वापस आने का इरादा रखते हैं तो ऑफिसर आपके फैमिली टाइज के बारे में ज़रूर पूछेगा. Why don't they look at my documents? Why don't they look at my documents? किसी ने पूछा था वो क्यों मेरे डॉक्यूमेंट्स नहीं देखते हैं. और मैंने पहले कहा कि अमरीकी वीज़ा प्रोसेस जो है वो इंटरव्यू पर मबनी है और ऑफिसर आपसे कुछ सवाल पूछेगा. ऑफिसर के पास आपकी दरख्वास्त होगी तो ऑफिसर देख सकता है कि आपने अपनी दरख्वास्त में क्या लिखा था. तो ऑफिसर को जब आप इंटरव्यू के लिए आते हैं तो ऑफिसर को बहुत ज़्यादा मालूमात आप ऑफिसर के पास है आपके बारे में और ऑफिसर सोचेगा कि मैं कौन से सवाल पूछूंगा जो मुझे बताएगा कि आपके टाइज पाकिस्तान के साथ मजबूत हैं या नहीं. अगर ऑफिसर डॉक्यूमेंट्स देखना चाहता है तो ऑफिसर पूछेगा. अगर ऑफिसर डॉक्यूमेंट्स नहीं देखता तो इसका मतलब है कि उनके फैसले के लिए ये डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी नहीं थी कि शायद उन्होंने आपकी पूरी बात तो वो आपकी पूरी बात मानता है ऑफिसर. लेकिन अगर तो इसलिए डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके टाइज वो ऑफिसर को पता है कि आपके टाइज काफ़ी मजबूत नहीं है. Are all visas 5-year multiple entry? And can you also explain the ESTA process? ठीक है. तो ज़्यादा वीज़ास जो हम देते हैं वो 5 साल के हैं. आमतौर पर हम 5 साल के मल्टीपल एंट्री वीज़ास देते हैं. कभी कभार हम सिंगल एंट्री वीज़ास देते हैं अगर आपके कोई ख़ास वजह है कि आप क्यों अमेरिका जा रहे हैं तो शायद वो छोटे दुरानिये के लिए वीज़ा देंगे. और उन्होंने पूछा था कि एस्टा के बारे में. तो अगर आप दूसरे मुल्क की नेशनल है जो हमारे वीज़ा वेवर प्रोग्राम में शिरकत करते हैं तो आप इंटरव्यू और वीज़ा वेवर प्रोग्राम पे अमेरिका जा सकते हैं. तो जैसे अगर आप यूके पासपोर्ट है आपके पास, कनाडा का पासपोर्ट है आपके पास तो आपको वीज़ा के बगैर और आप वीज़ा के बगैर अमेरिका जा सकेंगे. लेकिन आपको पहले से 2-3 दिन पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक अप्रूवल लेने की ज़रूरत होगी. और किसी ने पूछा था why do you in most cases reject the visas of the newlyweds? और ये सच नहीं है. न्यूलीवेड्स या फिर लोग जो सिंगल हैं ये सच नहीं है. हम हर रोज़ इधर कराची में बहुत सारे न्यूलीवेड्स को वीज़ास देते हैं. बहुत सारे लोग जो शादीशुदा नहीं हम वीज़ास देते हैं. जैसे मैंने पहले से कहा ये ऑफिसर का फैसला वो पूरी तस्वीर देखने की कोशिश करता है कि टाइज पाकिस्तान के साथ और फैमिली टाइज जी ये एक हिस्सा है लेकिन काम फैमिली ट्रैवल वगैरह बहुत ज़्यादा फैक्टर्स इस फैसले में कंसिडर हो जाते हैं. No one gets a visa from Pakistan, isn't that true? Or is it true that 72,000 Pakistanis got visas? उन्होंने कहा कि क्या ये सच है कि पाकिस्तानी लोगों को वीज़ास नहीं मिलते हैं. और ये बिल्कुल सच नहीं है. बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी लोगों को वीज़ास मिल जाते हैं और वो अमेरिका जाते हैं, वो अमेरिका में घूमते हैं. आप अमेरिकी कॉन्सुलेट की फेसबुक पेज पर देख सकते हैं #Pakistanis in America कि वो अमेरिका में घूमते हैं. तो ये एक गलत फहमी है. So it's true that there were 72,000 visas issued in 2015 and 64,000 in 2014? जी. So it's more than 72,000 visas that were issued in 2015 and 64,000 in 2014 and 64,000 in 2014. So बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी लोगों को visas मिलते हैं. Visas for visitors? No limit, no quota? नहीं. कोई quota नहीं है. कोई खास target है कि हमें like this many visas को reject करना पड़ता है. कोई ऐसी rule नहीं है. Okay. तो मोइज साहब ने पूछा था कि does age matter in refusal of visa? age तो नहीं. लेकिन age
عمر جو ہے وہ آفیسر شاید اس اگر آپ ینگ ہیں, اگر آپ جوان ہیں تو آفیسر شاید دوسرے سوالات پوچھیں گے آپ کے ٹائز کا جائزہ لینے کے لیے, اور اگر آپ کی عمر زیادہ ہے تو وہ شاید مختلف سوالات پوچھیں گے. لیکن میں اس بات پر غور کرنا چاہتی ہوں کہ آفیسر پوری تصویر دیکھتا ہے, بس ایک چیز نہیں ہے. یہ سچ نہیں ہے کہ اگر آپ کی عمر 20 سے کم ہے آپ کو ویزا نہیں مل جائے گا, اگر آپ کی عمر پتہ نہیں سے زیادہ ہے تو آپ کو ویزا ضرور مل جائے گی. یہ بالکل سچ نہیں. یہ آپ کے کیس پر, آپ کے حالات پر منحصر کرتے ہیں. So, last question of the day, and then we will reschedule another appointment in the future. Where did you learn to speak Urdu? اوکے, تو سب سے آخری سوال جو مجھ سے پوچھا تھا, میں نے کیسے اردو سیکھی تھی. تو میں امریکی فارن سروس میں ہوں, تو میں امریکی ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کے لیے کام کرتی ہوں, اور ہمارے پاس ایک بڑی انسٹیٹیوٹ ہے واشنگٹن ڈی سی میں, جہاں وہ بہت زیادہ زبانیں سکھاتے ہیں. تو میرے خیال میں 80 سے زیادہ زبانیں وہاں وہ پڑھاتے ہیں, اور میں نے وہاں پہ واشنگٹن ڈی سی میں اردو سیکھی تھی. اور جیسے آپ کو پتہ ہے امریکہ میں بہت زیادہ پاکستانی لوگ ہیں, تو اس لیے میں نے امریکہ ہی میں اردو سیکھی تھی. اوکے سو تو میں آپ سب لوگوں کو شکریہ کہنا چاہتی ہوں آنے کا, اور بہت بہت شکریہ, اور انشاءاللہ ہم دوبارہ مستقبل میں ایک اور ویزا چیٹ کریں گے, اور اچھا دن گزاریے. اللہ حافظ. خدا